आज श्री विजयपुरम के टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑडिटोरियम में एनटीसीपी के तहत अंडमान और निकोबार स्वास्थ्य सेवाओं और यूटीएचएम सोसाइटी द्वारा तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर की मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सचिव यूटीएचएम मिस रीचा थी, जबकि विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी थी। इसके अलावा उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सिद्धाराजू, डॉक्टर लाल, आयुष विभाग के प्रमुख डॉक्टर कल्याण, बीएड कॉलेज के छात्र, नर्सिंग छात्र और कई अन्य डॉक्टर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद एएनएम के छात्रों ने उपस्थित जनों का स्वागत किया। सबके मन का गीत बनकर आप यहाँ आए हैं, कोमल फूलों से खुशबू बनकर आप यहाँ आए हैं, सबके मन का गीत बनकर आप यहाँ आए हैं। हार्टी हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी हार्टी वेलकम टू यू। राज्य नोडल ऑफिसर डॉक्टर सत्यजीत हल्दर ने एनटीसीपी अभियान की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। टोबैको, तंबाकू क्या है? व्हाट इज टोबैको? What we have gathered, there was no tobacco in India maybe before 600-700 years back. So this was a native plant of South America, and when the Europeans started colonizing all over the world, so as they have introduced potato, tomato, and with that they also introduced tobacco to the Indian subcontinent. It was available in South America, chili pepper, tobacco, tomato, and potatoes, everything. So with the European colonization in the Indian subcontinent and other parts of the world also, along with the good things what they have introduced this habit also. Earlier than that, people were used to have palm leaves and other things, but no tobacco. And this smoking of tobacco somehow from Europe it spread to Middle East, from there it spread to India, and it became a fashion and it became a habit for people. So tobacco is a plant called Nicotina tabacum and Nicotina rusticum, which is the most common variety. They grown for Italy, and the used part is the leaves which are dried and fermented. All the tobacco products comprise a alkaloid substance called nicotine, which acts as CNS stimulant as well as in large doses as a depressant. Why tobacco is harmful for our body? As I told, tobacco contains a nicotine substance which creates a temporary feeling of well-being upon consumption, and ways of consumption is various, well as smoking or chewing or snorting through the nose. So many ways it has been done. Nicotine, as it enters the body, it causes surge of endorphins, which are the what we call happy hormones in the body, and it helps to relieve stress and improve the mood. But over time, people start building resistance to nicotine, and more they are exposed to that, more dosage they need to produce the same pleasurable effect. This itself leads to addiction, and cessation of it causes withdrawal and problem for the person. It also causes serious health problems like increasing blood pressure and hardening of the arterial walls, what we call atherosclerosis, causing heart attack and stroke and cancer. So many other problems are there. These are the common tobacco products we see. These are, most of them are smoke. So on the top we can see the most commonest one is cigarettes, cigarillos or smaller cigars, or chewing one type of. These are all used all over the world. Particularly in India, people smoke bidis also, and hookahs. Hookahs become like a cultural part of our people will sit in a group
and they will share same hookah. People from same community will have a common hookah for that, and there will be hookahs for separate communities. So it become a part of our culture. Even sometimes in sayings also we'll say कि आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, मतलब he will be excommunicated from the society. So it is very much deep ingrained in our psyche and culture. Similarly, pan leaf, which is also part of, which is used to consume tobacco mixed with lime and areca. So areca and pan leaf is a very auspicious thing in many cultures, many societies. So to start any program, they will marriages and so pujas also, they will use the pan leaves and supari and all these things. But somehow it become associated with tobacco and it become a adverse thing. So to educate people about the harmful effects of few of the ingredients in the pan and all these things, a daunting task. And we also have to remember that so many industries are benefited by this tobacco. Tobacco industry is not just people growing the tobacco. People associated, the agriculture sector is there, marketing sector is there, and there is so many industries who will directly or indirectly involved with the tobacco production and distribution. So our job mainly is to educate the people and make them aware of the harmful effects of tobacco, and not encourage people not to start the thing, start consuming tobacco. Once they start habit, then it becomes very difficult to give it away. On the bottom line, you can see different shape type of product. One with the USB charger also is there. So these three are e-cigarettes, or we call it vaping devices. It does not need a match to light it also, just to put on a switch it on, it will start giving smoke and vapor. So it is actually become a trend in so many places where people think that chewing tobacco is a bad habit and this is harmless, and they are also advertised in such a way. But we have a law for that also, PECA, to stop this e-cigarettes and all these products not to be encouraged and not to be imported. Let us all take a pledge to spread awareness and stand together for the tobacco-free youth and a healthier nation. मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों और परिचितों को भी तंबाकू का सेवन न करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव से पर्यावरण की रक्षा में योगदान दूंगा। मैं कम से कम 10 अन्य लोगों को भी यह शपथ लेने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं समाज को तंबाकू मुक्त बनाने में अपना योगदान दूंगा। खालसा पब्लिक स्कूल के छात्रों ने तंबाकू के खिलाफ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। एएनएम के छात्रों ने भी तंबाकू के निषेध के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। बात बताने तुमको हम आज यहाँ पे आए हैं, बात बताने तुमको हम आज यहाँ पे आए हैं। तंबाकू की सेवन करने से जिंदगी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, पैसा बर्बाद, पैसा बर्बाद। तंबाकू का सेवन करने से इसकी लत भी लग जाती है।
तंबाकू का सेवन करने से लगभग 3000 लोगों की मौत हो जाती है। 3000। यम हम। अरे चित्रकूट जी। जी महाराज। चलो चले। जी महाराज, लेकिन कहाँ? उस नशेड़ी के पास जो कहता है तंबाकू खाने से कुछ नहीं होता। जी महाराज। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये पान मसाला, तुमने खुद से ही खुद को बर्बाद कर डाला। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये पान मसाला, तुमने खुद से ही खुद को बर्बाद कर डाला। नशा ही नशा, मजा ही मजा, बोलो सुबह केसरी। अरे बाबा, खून आ रहा है, अस्पताल ले जाओ, अस्पताल। अरे ये क्या दिन आ गया। चलो। बुलावा आया है, डॉक्टर ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, डॉक्टर ने बुलाया है। अरे अब इनके पास तो ज्यादा समय नहीं है, इन्हें घर ले जाओ। इनकी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब बंद, क्योंकि बंद हो गया है सब। जोर का झटका है, जोरों से लगा, हाय लगा। बीवी बन गई उम्र कैद की सजा, हाय सजा। जोर का झटका है, जोरों से लगा, हाय लगा। बीवी बन गई उम्र कैद की सजा, हाय सजा। अरे छोकरे, इसे मत खा, मर जाएगा। क्या माँ, मैं 15 साल से खा रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तू जा, मर। यम हम। अरे चित्रकूट जी। जी महाराज। मैं तो थक गया। क्यों महाराज? अब इतनी लाशें मुझसे उठाई नहीं जाती। क्यों महाराज, ऐसी क्या समस्या आ गई? इनका तो कोई अंत ही नहीं है। जी महाराज। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये पान मसाला, तुमने खुद से ही खुद को बर्बाद कर डाला। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये पान मसाला, तुमने खुद से ही खुद को बर्बाद कर डाला। मम्मी, टीवी ऑन करिए। मैं पिछले 5 साल से भूखा चबा रहा था, अब मुझे कैंसर है। मेरा ऑपरेशन होने वाला है, क्या पता अगली बार कुछ बोलने के लिए मैं यहाँ ना रहूं। अफसोस, मुकेश अब नहीं रहा। वह सिर्फ 24 साल का था। तंबाकू सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं है, वह अब छोटों को भी अपने में समेट रहा है। मेरा नाम पूनम है और मैं 7 साल से गुटखा खाती हूँ। बचपन में लगी आदतों का भुगतान हमें भविष्य में करना पड़ता है। अरे आप सब जानते हैं, धूम्रपान करने से आपकी जिंदगी के 10 साल कम हो जाते हैं। धूम्रपान आपकी मानसिक एवं शारीरिक को भी बर्बाद कर देता है। ये केवल आपके परिवार की खुशियों को भी बर्बाद कर देता है। तो चलिए हम अपने भारत को नशामुक्त करने के लिए प्रयास करें। नशे को जो अपनाएगा, नशे को जो अपनाएगा, पूरे जीवन में पछताएगा। पूरे जीवन में पछताएगा। नशे को जो अपनाएगा, नशे को जो अपनाएगा, पूरे जीवन में पछताएगा। पूरे जीवन में पछताएगा। नौजवान पीढ़ी को, नौजवान पीढ़ी को जागरूक बनाएंगे, जागरूक बनाएंगे।
भारतवर्ष को नशा मुक्त कर पाएंगे। नौजवान पीढ़ी को जागरूक बनाएंगे। तभी भारतवर्ष को नशा मुक्त कर पाएंगे। ज्ञान हमें फैलाना है। नशे को मार भगाना है। ज्ञान हमें फैलाना है। नशे को मार भगाना है। उम्मीद न कोई आशा है। चारों ओर निराशा है। बर्बाद तुम्हें ये कर देगा। नशे की यही परिभाषा है। उम्मीद न कोई आशा है। चारों ओर निराशा है। बर्बाद तुम्हें ये कर देगा। नशे की यही परिभाषा है। सुनो सब ध्यान से सुनो। आओ नाटक देखो। नाटक दिखाने आए हैं। बात पते की तुमको हम आज बताने आए हैं। सुनो सब सुनो। तंबाकू का सेवन यानी जीवन बर्बाद, पैसा बर्बाद। तंबाकू के सेवन से उसकी लत भी लग जाती है। मुझे तो तेरी लत लग गई। जमाना चाहे लत ये गलत लग गई। मुझे तो तेरी लत लग गई। तंबाकू को जिसने गले लगाया, मौत ने उसको पास बुलाया। तंबाकू का सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारी होती है भाई। तंबाकू का सेवन करने से हर रोज लगभग 3,500 जान जाती है। 3,500। अब समय है जागने का, तंबाकू से नाता तोड़ने का। आइए देखते हैं दो दोस्तों की कहानी। जिंदगी का जश्न मनाता रहा। फिक्र को धुएं में उड़ाता गया। अरे यार, अरे तेरे मुंह से तो दारू से ज्यादा सिगरेट की बात आ रही है यार। चल गुटखा दे। अरे नहीं है मेरे पास। ये मेरे पैसे की है। अरे तो मेरे भी तो पैसे थे। दे। नहीं दूंगी मैं। दे। नहीं, दे। मैंने बोला नहीं। कहा जाता है कि दोस्त एक ऐसा चोर होता है जो हमारे हाथों की लकीरों से हमारा मौत भी चुरा कर ले जाए। लेकिन मुझे शर्म आ रही है ये देख के कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते जो अपने 2 पल की नशे की तलब को मिटाने के लिए अपने ही दोस्त को मौत के कुएं पे ढकेलता जाता है। इसीलिए ही कहते हैं सिगरेट गुटखा पान है मौत का समान। अरे देखो ही इसको, आजकल के जमाने को ये क्या हो गया है। ये तो सुधरने वाले हैं नहीं और बोलो तो अलग है इनका। हाँ, इन्हें बोलकर तो कोई फायदा ही नहीं है। आइए देखते हैं कि तंबाकू एक साधारण परिवार को कैसे तबाह कर देता है। अरे ओ भाग्यवान, बत्ती क्यों बंद कर रखी है तूने? अरे कहाँ से लाऊं बत्ती? बिजली का बिल भरा है क्या? अरे ये तो हमेशा का हो गया, कभी बिजली कभी पानी। तू पैसा करती है। तू पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? पैसे करने में क्या अर्थ होता है? तू भी तो गुटखा करता है। तू गुटखा करता है, तू गुटके पे भी मरता है। अरे मुझे नहीं पता, मुझे बीड़ी चाहिए, तो पैसे निकाल। पैसे कहाँ से लाऊं? कमा के लाए हो क्या? मुझे क्या पता, तू भी तो खाती है पान मसाला। गुटखा खा के हो गया बवाल, क्या करे? हो गया है कैसा ये बीमार, क्या करे? अरे क्या हो गया?
टेस्ट के रिपोर्ट्स तो आ चुके हैं, बट उससे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आप धूम्रपान या फिर तंबाकू का सेवन करते थे? जी हाँ, हम करते थे। कब से करते हैं? एक बचपन 13 साल से हम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको जो है हार्ट अटैक हुआ है। हे राम, इसने तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिया है। देखिए, आप घबराइए मत। सबसे पहले जो है इनको आज से ही इनका ये नशे की लत को छोड़ना पड़ेगा और इनका ट्रीटमेंट जो है हम लोग आज से ही शुरू कर देंगे। अरे ये तो होना ही था, क्योंकि ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये पान मसाला, तूने खुद से ही खुद का गला काट डाला। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये पान मसाला, तूने खुद से ही खुद का गला काट डाला। आओ भाई, सुनो कहानी तंबाकू की जहरीली जुबानी। छोटे बड़े सब हैं इसके शिकार, फिर भी कोई नहीं करता इससे इनकार। माँ, ओ माँ, मैं आ गई। आप कैसी है? मैं अच्छी हूँ बेटा। मेरी पीएचडी पूरी हो गई है। तू आ गई, कब से तेरा ही इंतजार था मुझे। आ बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेके आती हूँ। ठीक है माँ। दीक्षा बेटा, तू अंदर है क्या? हाँ हाँ हाँ, रुकिए रुकिए। ये क्या बदबू आ रही है तेरी रूम से? माँ, तो क्या कर रही थी? कुछ नहीं माँ, मैं कुछ नहीं कर रही थी। फिर ऐसी बदबू क्यों आ रही है तेरे मुझे नहीं रूम से? पता माँ। ये क्या है तेरे हाथ पे? दिखा कुछ मुझे। नहीं माँ, कुछ क्या नहीं छुपा है। रही है? ये मेरा नहीं है ये माँ, क्या है? मेरा नहीं है, मुझे नहीं ये पता। तेरे हाथ पे कहाँ से आया ये? बोल, कहाँ से आया? फिर ये कहाँ से आया? बोल, क्या हो गया तुझे? अरे ये तो खून निकल रहा है। अरे भगवान, कोई एम्बुलेंस बुला दो भगवान। चलो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर देखिए ना, मेरे बेटी को क्या हो गया है? कब से हो रहा है ये अभी थोड़ा देर से ही हो रहा है। ठीक है, आप डरिए मत, मुझे चेक करने दीजिए। आप घबराइए मत, मुझे इनका एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, बट उससे पहले आप मुझे थोड़ा बताइए ये कि क्या आपकी बेटी कोई धूम्रपान या फिर तंबाकू का सेवन करती है? वो तो मुझे नहीं पता डॉक्टर, लेकिन मुझे आज ये मिला मेरे बेटी के पास से। फिर तो शायद से आपकी बेटी को जो है फेफड़े की बीमारी होने की संभावना है। हे भगवान, ये कैसे हो गया बेटी तुझे? कैसे हो गया? सुनिए सुनिए, आप घबराइए मत। इनको जो है आज से ही इनका ये नशे की लत को छोड़ना होगा और आपका ये बेटी का जो है ट्रीटमेंट हम लोग आज से ही शुरू कर देंगे। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, लाए बर्बादी, इनसे नहीं मिलती कोई आजादी। माँ की ममता, बच्चे की हंसी, सब कुछ खो देती है तंबाकू की बसी। तंबाकू जहर है, जीवन से कहर है। तंबाकू छोड़े और जीवन से नाता जोड़े। कुछ महीने बाद। अरे भवेश, कैसा है यार? तू कहाँ था इतने वक्त से? अरे यार, मैं क्या बताऊं, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं कल अस्पताल गया था टेस्ट कराने, अभी मैं रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। डॉक्टर जी, कल मैंने टेस्ट कराया था, मैं रिपोर्ट के लिए आया हूँ। रिपोर्ट्स तो आ चुकी है, उससे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आप तंबाकू या फिर धूम्रपान का सेवन करते थे? जी हाँ, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको मुंह का कैंसर हुआ है। क्या? कैंसर? मुझे कैसे कैंसर हो सकता है? क्योंकि आप धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करते आ रहे हैं, इसी वजह से आपको ये हुआ है। तो डॉक्टर साहब, गुटखा तो मैं भी खाता हूँ, तंबाकू तो मैं भी खाता हूँ, तो ये क्या मुझे भी हो जाएगा? जी हाँ, आपको भी होगा। तो इसे ठीक किया कैसे जाता है? सबसे पहले आज से ही आपको ये धूम्रपान और तंबाकू का ये नशा आज से ही छोड़ना पड़ेगा और आपका ट्रीटमेंट जो है हम लोग आज से ही शुरू कर देंगे। आप डरिए मत। क्या करेंगे यार? आज से ही हमें ये सब छोड़ना होगा और जिंदगी का नया शुरुआत करना होगा। तंबाकू को करे ना और जिंदगी को करे हाँ। ना करेंगे, ना किसी को करने देंगे। इसमें तो समय पर सीख ले, मगर हर कोई इतना लकी नहीं होता। तब इसलिए आज ही तंबाकू छोड़े। तंबाकू एक जहर है, ये कोई स्टाइल नहीं, ये एक सुसाइड है।
तंबाकू एक ऐसी नशे की वस्तु है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से नष्ट कर देता है। इसका सेवन, धूम्रपान और चबाना दोनों ही रूपों में हानिकारक होता है। तो आइए अब जानते हैं तंबाकू के कुछ हानिकारक प्रभाव। माननीय मुख्य अतिथि और स्वास्थ्य सचिव मिस ऋचा ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए सभी युवा छात्रों से तंबाकू के उपयोग से परहेज करने की अपील की। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इन सब चीज़ों की आदत बच्चे, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, जब हमें सही और गलत की समझ कम होती है, उस समय इन सब चीज़ों की आदत लगने की ज़्यादा संभावना होती है। इसी को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट है कि जो तंबाकू मुक्त है, टोबैको फ्री यूथ, क्योंकि अगर बचपन में यूथ एज में किसी को ये आदत नहीं होती है तो मुझे स्टडी का तो नहीं पता, बट जनरली जो कॉन्सेप्ट है फिर बाद में इन सब चीज़ों की आदत नहीं लगती है और बंदा बिल्कुल ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की एक दिशा में चल पड़ता है। तो बच्चों, आपने देखा, आप लोगों ने तो देखा पूरा, आप जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह से समझते हैं और इसकी जो भयावह पक्ष है उसको बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है। कितना भयानक इसका पक्ष है। ये जानलेवा हो सकता है, ऐसी बीमारी से ग्रसित कर सकता है कि ज़िंदगी बिल्कुल ही किसी काम में आपका मतलब ज़िंदगी बिल्कुल ही परेशान कर हो जाती है, ऐसी गंभीर बीमारियों का कारण होता है। तो इससे बचना और अपने साथियों को भी अगर आपको कहीं लगता है ये मैसेज देना कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए बाकी चीज़ों के साथ साथ टोबैको मुक्त रहना है और इसकी जैसे आज शपथ ली गई है, उस शपथ के जो वाक्य है उसको अक्षरशः जैसा आपने कहा है आप इसको नहीं करेंगे और आप अपने मित्र को भी, दोस्तों को भी, सभी को प्रेरित करेंगे कि इस पहल का हिस्सा बने और इसको कामयाब बनाएं। कार्यक्रम का समापन सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री जेबा से द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। Your awareness, energy and leadership can make the vision of tobacco-free youth a living reality. Lastly, I would like to acknowledge the tireless efforts of the NTCP team, organizers and volunteers who work behind the scene to make this event a grand success. यह अभियान युवाओं को तंबाकू मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने और हमारे द्वीपों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।